ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਹੀ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਫੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ? 15,31,669 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 34,193 ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9,88,029 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ करीब 10 ਲੱਖ ਉਹ ठीक हो चुके ने, कोरोना ਨੂੰ मात दे चुके ने, उभर चुके ने। ते इस वेले 5,09,447 लोग ने ਜਿਹੜੇ इस वेले एक्टिव ने, जिन्हां दे विच कोरोना पॉजिटिव है। एक्टिव केस ने देश भर दे विच 5,09,447। ये आंकड़ा है टीवी स्क्रीन ते असीं तुहानूं ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हाँ। 15,09,447 टोटल केस ने, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 9,88,029 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 34,193 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,09,447 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰ 9,88,000 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਆંકੜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ੍ਰਾਫ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? 28 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕੱਲ 48,513 ਕੇਸ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ 47,703 ਕੇਸ ਆਏ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 49,931 ਕੇਸ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ 3 ਕੇਸ 48,513 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, 47,703 27 ਨੂੰ ਤੇ 49,931 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ ਜੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 768 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 654 ਤੇ ਫਿਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 708। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। 2833 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, 2119 ਕੇਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1646 ਕੇਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ 2833 ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2119 ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ 1646 ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2833 ਕੇਸ ਟੋਟਲ ਆਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਮੈਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਔਰ ਫਿਗਰਸ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2833 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1507 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ। 71 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 981 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 2167 ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। 2167 ਚੋਂ 1622 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 47 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 498 ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ 1721, 1197 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ। 72 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 452 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 3 ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ 982 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 723 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ। 26 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 233 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 1504 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਟੋਟਲ। 821 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 25 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ 658। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਆਏ 499। 287 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 17 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 154 ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ 340। 277 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ। 12 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 51। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 301। 248 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 50। ਫਿਰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਆਏ 526। 365 ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। 14 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 147। ਫਿਰ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।
पॉजिटिव मामले ने 332, 188 ठीक हो गए, 6 की मौत हुई, केस बचते ने 138 ਜਿਹੜੇ एक्टिव मामले ने। फिर है फतेहगढ़ साहब च पॉजिटिव मामले आए 334, 218 रिकवर कर गए, 2 की मौत हुई, इस वेले केस ने 116। फिर है फरीदकोट, कुल मामले आए ने 261, 196 रिकवर कर गए, मौत किसी दी नहीं हुई, 65 केस इस वेले एक्टिव ने फतेहगढ़ साहब। फिर है मोगा, पॉजिटिव मामले आए 305, 186 ठीक हो गए, 6 की मौत हुई, इस वेले 114 केस ने। फिर है बठिंडा च मामले आए 387, 161 ठीक हो गए, 5 की मौत हुई और इस वेले एक्टिव केस ने 271। मुक्तसर दे विच केस आए ने 213, 184 ठीक हो गए, 1 की मौत हुई, 28 इस वेले एक्टिव केस ने मुक्तसर जिले च। फिर है रोपड़, पॉजिटिव मामले 246, 183 ठीक हो गए, रिकवर कर गए, 4 की मौत हुई, 59 केस एक्टिव ने। फिर है फाजिलका, कुल केस ने 265, 265 चो 135 ठीक हो गए, 1 की मौत हुई, 129 इस वेले एक्टिव केस ने। फिर है बरनाला, 145 टोटल, 77 ठीक हुए, 3 मौतां हुईयां, इस वेले एक्टिव केस ने 65। और फिर है जिला मानसा च पॉजिटिव केस ने 113, 70 ठीक हो गए, मौत किसी दी नहीं हुई, इस वेले एक्टिव केस ने 43। ये पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ की स्थिति है, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ केस आए और किन्ने उसਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ठीक हो गए, ये ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ है। शाम ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ मीडिया बुलेटिन जारी करेगी, आंकड़े आउणगे, फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ उस बाबत दसांगे। एक वड्डी खबर आ रही है, मोदी कैबिनेट की अज मीटिंग हुई है, उस मीटिंग दे विच वड्डा फैसला होया है, उसका जिक्र कर लैने हाँ। उस मीटिंग दे विच नवीं कौमी सिक्ख्या नीति नूं मंजूरी दे दी गई है, तो सिक्ख्या के खेत्र दे विच वड्डे सुधारां दा राह खुल गया है। HRD मंत्राला जिहड़ा ह्यूमन रिसोर्सिस डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री है, HRD जिसनूं कहा जाता है मिनिस्ट्री, उसका नाम बदल के हुण सिक्ख्या विभाग कर दिता गया है, सिक्ख्या मंत्राला कर दिता गया है। एक वड्डा फैसला लिया गया। 34 साल बाद देश दे विच सिक्ख्या नीति दे विच बदलाव होया है और बजट च खजाना मंत्री ने इस नवी नीति का ऐलान किया सी, जिस ते अज कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। और इस दे विच वड्डा फैसला कि HRD ह्यूमन रिसोर्सिस डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होना चाहिए। अभी एज ऑन डेट इट इज अराउंड 4.43%, इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दैट we will work together, that is the central government, state governments will work together to achieve 6%. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, USA में नेशनल साइंस फाउंडेशन के बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फाउंडेशन NSF माध्यम से स्पॉन्सर होते हैं। थोड़ा सा सरकार ने करके नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी फाइनेंसिंग करेगा। और इससे हम समझते हैं कि शिक्षा के साथ रिसर्च में जो हमको आगे आना है, जो रिसर्च, इनोवेशन, पेटेंटिंग, इसमें हम आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में पॉलिसी ने विस्तार से चैप्टर 12 में उल्लेख किया है और उल्लेख ये है कि हम अपने देश के शिक्षा को, की उच्च शिक्षा को इस स्तर का बनाएंगे कि बाहर के विद्यार्थी हमारे साथ आएं और जो एक्सचेंज होते हैं वो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विदेश के हाई रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच हों। स्टैंड अलोन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने की ओर हम बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग ड्राफ्ट पॉलिसी में भी उल्लेखित था, कोविड के कारण पूर्व से ही व्यापक उपयोग होने लगा है। पॉलिसी में लिखा है कि टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग होगा विथ इक्विटी, यानी हम समावेशी रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, लेकिन इस प्रकार से करेंगे कि जो हमारे साथी पीछे हैं या जो आर्थिक कारणों से जिनके पास डिवाइस या कनेक्टिविटी में रुकावट है, तो हम उनको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड बट एवरी चाइल्ड विल बी टेकन ऑन बोर्ड। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में
जो विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन सभी भाषाओं पर ध्यान देते हुए जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लैंग्वेज फैकल्टी के रिसर्च जो लैंग्वेज पे होता है, जो क्लासिकल इंस्टीट्यूट हैं जैसे क्लासिकल तमिल, क्लासिकल तेलुगु, कन्नड़, और जो CIL मैसूर है जिसमें और इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उन सब पे ये जोर दिया जाएगा कि जो साइंटिफिक और लिटरेचर है जो अलग अलग भाषाओं का है उसको हम लोग आगे लाएं, और ट्रेडिशनल आर्ट्स, जो आर्ट्स यानी कि उसमें क्राफ्ट भी सम्मिलित हैं, लोक विद्या जिसको हम कह सकते हैं, जो पीछे कई बार हम लोग मॉडर्नाइज होने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन जो हमारे लोक विद्याएं छूट जाती हैं उनको भी हम आगे ले जाएंगे। और टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने आपसे उल्लेख किया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें 4 मुख्य हैं। शिक्षा की जो योजना बनेगी, एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, जो समस्याएं आज देखने को आ रही हैं विशेषकर असेसमेंट में, एग्जाम्स के बारे में, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट में हम टेक्नोलॉजी का इस प्रकार उपयोग करेंगे कि सेमेस्टर वाइज, मिड सेमेस्टर वाइज ये टेक्नोलॉजी के उपयोग से 360 डिग्री असेसमेंट होगा। उसका उल्लेख जब स्कूल में आएंगे तो आप हमारे सहकर्मी करेंगी। मैंने पहले भी कहा, एक्सेस टू द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, डिसएडवांटेज कुड बी इकोनॉमिकल, डिसएडवांटेज कुड ऑल्सो बी ड्यू टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, उनके बारे में भी विशेष उल्लेख है कि दिव्यांग। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होने हैं। डिस्टेंसिंग का हथियार, कोरोना से जुड़ी हर सावधानी और हर अपडेट देखिए अनलॉक 1 में, सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। घर मेरा भी है, परिवार मेरा भी है, सवाल ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। फ्रांस तो उड़ान भरन मगरों 5 राफेल लड़ाकू जहाज आज अंबाला एयरबेस ते पहुंचे ने, जिथे उन्हां दा वाटर सल्यूट नाल स्वागत किया गया। इस दौरान हवाई फौज के मुखी RKS भदौरिया भी मौजूद सन। भारत पहुंचण ते राफेल का शानदार स्वागत होया। अरब सागर च दाखिल होने ते INS ने कहा हैप्पी लैंडिंग। राफेल नूं आसमान च सुखोई वालों एस्कॉर्ट किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल के अंबाला पहुंचण ते ट्वीट किया। रक्षा मंत्री ने हवाई फौज को बधाई दी है। राफेल ने सोमवार को फ्रांस तो उड़ान भरी सी ते फ्रांस तो मिलने वाली राफेल जहाज़ों की यह पहली खेप है। फ्रांस तो राफेल नूं भारत लियाउण वाले ग्रुप च गुरुग्राम के रोहित कटारिया भी शामिल ने। रोहित पिंड बसई के रहने वाले ने ते फ्रांस जाके राफेल उड़ाउण की ट्रेनिंग लै चुके हैं। अमृतसर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जो बीते दिनी बिना कोरोना टेस्ट करवाए लखनऊ तो अमृतसर पुजे सन। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इन्होंने यूपी तो पंजाब कौन लैके आया। लहरा गागा च वाधे कोरोना मरीजों के चलदियां 2 होर वार्डां च माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। इस दौरान विआह समागम च आदेशों की उलंघना करने वाले का 10,000 रुपए का चलान भी कट्टिया गया ते अगे तो अजिहा ना करने की वार्निंग दी गई। पंजाब के नौजवानों को जल्द कैप्टन सरकार हुण स्मार्टफोन वंडन जा रही है। मुख्यमंत्री के दावे के मुताबिक 50,000 स्मार्टफोन तैयार हो गए हैं ते पहले गेड़ च 11वीं ते 12वीं दियां विद्यार्थियों को यह मोबाइल फोन दिते जाएंगे। पंजाब सरकार ने हुण दफ्तरां च तैनात अफसरां दे पेट्रोल डीजल च 25% की कटौती कर दी है। हालांकि यह फैसला उन्हां अधिकारियों ते लागू होएगा जो सिर्फ 50% स्टाफ नाल काम कर रहे हैं। पंजाब सरकारी कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरीयड को लैके सरकार वालों एक बड़ा स्पष्टीकरण आया है। वित्त महकमे ने साफ किया कि प्रमोशन के लिए प्रोबेशन पीरीयड पहला भी काउंट होंदा सी ते अगे भी होंदा रहेगा। बेअदबी मामले च मुख मुलजम इंदरपाल बिट्टू के परिवार ने बिट्टू की मौत बदले मुआवजा मंगया है। परिवार ने फरीदकोट अदालत च दावा किया है कि जेल च बिट्टू के कतल लिए पंजाब सरकार ते फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर जिम्मेवार।